मेरा नाम आसमीरा है और आज की मीटिंग को प्रिजाइड मैं करूंगी। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करते हैं। कदूस 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 रब्बुल फ़ात, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक के बाप, मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ इस वक्त इस घड़ी के लिए जो तूने हम सबों की ज़िंदगियों में बख्श दिया है कि तेरे नाम की तारीफ और तमजीद कर सके खुदावन। आज की सारी मीटिंग को तेरे हाथों में देती हूँ खुदावन, तू हमारी बड़ी निगहबानी और मुहाफ़ज़त करना खुदावन। शुरू से लेके आखिर तक तू हमारे साथ रहना और बड़ी निगहबानी करना, मसीह यस्सु के नाम से आमीन। आमीन। हमारे दरमियान भाई इब्राहिम सनी है और वो साम 100 और उसकी पहली ता 6 आयत की तलावत करेंगे। Make a joyful noise into the Lord. All ye lands, serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord, he is God. It is he that hath made us, and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Enter into the gates with the thanksgiving. God into his courts with praise. Be thankful unto him and bless his name. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endureth to all generation. Amen. Amen. आमीन। इबादत में आगे बढ़ते हुए मैं दावत दूंगी भाई मनाहम, मीका और मिशाइल को कि वो हमें प्रस्तुति में लीड करें। Hello everyone, my name is Manaham and I will worshiping for our Lord. Let's worship together. Thank you. So that we can have a much idea.
हम एक गीत गाएंगे, सब मिलकर गाएंगे। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करें। हालेलुया तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे, हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे। हालेलुया, 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 सदा मैं तारीफ करूंगा, सदा तेरा करूंगा, सदा मैं तारीफ करूंगा, सदा तुझे याद करूंगा,
आमीन। गॉड ब्लेस यू मोर एंड मोर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी ये फर्स्ट मीटिंग है, तो मैं चाहूंगी कि आप सब अपना इंट्रोडक्शन दें। सबसे पहले मैं अशफा शाहिद से कहूंगी कि वो अपना इंट्रोडक्शन दें। Good evening, everyone. My name is Ashfa Shahid and I am a student. और मैं सेंट एंथनी हाई स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस मिनिस्ट्री के साथ ज्वाइन हुई। थैंक यू। नेक्स्ट अली सारिफ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hey everybody, this is Mili Sarif and I am the student of class 8 Pink from St. Anthony High School. I'm very glad that you guys joined me. Thank you so much. थैंक यू। शारून नजीर। Hello everyone, Sharoon Nazir here. I'm an electrical engineer, or currently I'm still pursuing my studies, or proud to be part of this ministry, and hope that we'll grow together in Jesus Christ. Thank you. थैंक यू। युमाइमा हसनी। Good evening, everyone. My name is Ibrahim Sunny. I just come to Canada. I'm doing my studies. I'm proud to come in this meeting. Okay. थैंक यू। अमान बाबर। Hello everyone, my name is Aman and I'm a student and I'm glad to be in this ministry and in this meeting. Thank you. थैंक यू। हिमान आशिर। Hello, good evening, everyone. My name is Iman. I'm proud to be a member of this ministry, and I'm looking forward to getting to know each one of you and glorifying God's name. Thank you. Zoya Nazir, introduce yourself. Good evening, everyone. My name is Zoya Nazir, and I'm actually an MBBS student in Alam Iqbal Medical College. I'm very proud to be the part of this ministry, and I hope we grow together in the name of Christ. Thank you. Thank you. Next is Sister Iman Babar. Hi, good afternoon. My name is Iman and I'm a student of class 7 and I'm proud to be a part of this ministry. Thank you. Thank you. Brother Harun Nazir. मेरा नाम हारून नजीर है, मैं डीएल एस्टेट का काम करता हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you. Okay. Thank you, everyone. Now I invite Sister Mishma Mary to read the Bible from Psalm 23, verse 1 to 6. Hi everyone. आइए हम साइंस बुक की तिलावत करेंगे।
खुदावन मेरा छुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरगाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपनी नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे ऐसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं हमेशा खुदाओं के घर में सुकूनत करूंगा। खुदा आपका पढ़ा नाम सुना पढ़ा जाए सबसे दुआएं से बरकत हो। थैंक यू। नेक्स्ट मैं दावत देती हूँ अमन बाबर को कि वो प्रोवर्ब 1:7-10 वर्स की रीडिंग करेंगी। मिसाल उसका पहला बाब और उसकी 7 से 10 आयत तक। नौजवान को नसीहत। दामन का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत को तरबियत का हकारत करते हैं। ऐ मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर, क्योंकि वो तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा और तेरे गले के लिए तोक होंगे। ऐ मेरे बेटे, अगर गुनाहगार तुझे फिसलाएं तो रजामंद ना होना। आमीन। आमीन। नेक्स्ट मैं दावत देती हूँ एंजल आरिफ को कि वो प्रोवर्ब 1:15-16 वर्स को रीड करें। आज की तिलावत पाक कलाम में से इमसाल पहला बाब 15 से 16 आयत। तू ऐ मेरे बेटे, तू उनके हमरा न जाना, उनकी राह से अपना पाँव रोकना, क्योंकि उनके पाँव बदी की तरफ दौड़ते हैं और खून बहाने के लिए जल्दी करते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आमीन। नेक्स्ट हमारे दरमियान सुलेमान भट्टी हैं और वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया। ए जिंदा कदूस मेहरबान खुदा कादिर खुदा अजीम बाप, हम सब तेरे हुजूर झुकते और तुझे सजदा करते हैं, क्योंकि तू सजदों और तारीफ और तमजीद के लायक खुदा है। ऐ खुदावन, आज जितने लोग भी इस ऑनलाइन मीटिंग में शामिल होकर तेरे कलाम को सुन रहे हैं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं, खुदा इन सब को तू अपने पाक और बड़े के लहू में छिपा, और ऐ खुदावंद इन्हें बहुत सारी बरकतें नेमतें नवाज, ताकि इस मीटिंग के वसीला से, ऐ खुदावंद इस कलाम के वसीला से, आज के दिन के वसीला से हमारी जिंदगियों में रिवाइवल है। हम तेरे कलाम को सुने और तेरी ऐ खुदावंद रूहानियत में, तेरी तेरी ऐ खुदावंद बरकतों में, तेरी ऐ खुदावंद रासबाजी के कामों में हम बढ़े, तरक्की पाएं, और इस खिदमत को ऐ खुदावंद जब तक जीते हैं करते रहें, और तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल मिले। ऐ खुदावंद इस मिनिस्ट्री के लिए दुआ करता हूँ यीशु नाम से। ऐ खुदावंद इस मिनिस्ट्री के जितने भी मेंबर्स हैं, ऐ खुदा इन सब को अपने जलाल से, अपने अपनी बरकतों अपनी कुव्वत से नवाज, ताकि ऐ खुदावंद और तेरे लोगों को बचाने का वसीला बन सकें, और ऐ खुदा खोई हुई भेड़ों को ढूंढने का एक खुदा वसीला बन सकें। ऐ खुदावंद एक बार फिर मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस वक्त के, इस टाइम के लिए, आज के दिन के लिए, इस मीटिंग के लिए, जिसको ऐ खुदा तूने हमारी जिंदगी में अता फरमाया कि हम तेरे कलाम को सुने, तेरे बच्चों से, तेरे लोगों से और तेरे बेटों बेटियों से ऐ खुदा, ताकि हम बरकत पाए। मसीह खुदा में यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। अब मैं चाहूंगी कि अशफा शाहिद, शारून नज़ीर, जोया नज़ीर, हिमान आशिर ये टर्न बाय टर्न अपने थॉट्स को शेयर करें। अशफा शाहिद। आज जिस टॉपिक पे मैं अपने थॉट्स को शेयर करूंगी, उस टॉपिक का नाम है हम मसीह में किस तरह मजबूत हो सकते हैं। मसीह के ईमान में मजबूत और मुस्तकीम रहने के लिए यीशु मसीह की अंजील का दिल और जान में रच बस जाना जरूरी है। इसका मतलब है कि इंसान की जिंदगी पर असरअंदाज होने वाले कई अवामल में से अंजील एक नहीं, बल्कि इंसान के किरदार या जिंदगी का अहम गर मरकज है। खुदावंद फरमाता है,
मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बदन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल निकाल डालूंगा और गोशन दिल तुमको इनायत करूंगा और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम से अपने आइन की पैरवी करवाऊंगा और तुम मेरे अहकाम पर अमल करोगे और तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा खुदा हूँ। ये वो ऐहद है जो हम बपतिस्मे और हैकल के रसूम के जरिए से बांधते हैं, लेकिन बाज ने अभी तक यसू की अंजील को अपनी जिंदगी में पूरी तरह कबूल नहीं किया। जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो दुख के बदले राहत मिलती है, फसाद के बदले सुलह और मायूसी के बदले अपनी मसीह के मान में मजबूत रहने से खुदावन का फजल और मदद हमें मिलती है। वो जहमत को रहमत में बदलेगा और यसिया नबी ने के अल्फाज में वो खाक के बदले खूबसूरती देगा। हमारे खुदावन हमें खुदावन के हुक्मों हमें खुदावन के उस हुक्मों को तमाम जान फशानी के साथ मानना चाहिए और खुदावन पर भरोसा रखना चाहिए। इसी तरह हम मसीह के मान में मजबूत हो सकते हैं। शुक्रिया। Thank you, Ashpa. God bless you. Next, Brother Sharon Nazir, I really want to share your views or thoughts about. थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं शारून नज़ीर हूँ और सबसे पहले तो मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने ये मौका बख्शा कि हम आउट ऑफ आवर डेली लाइफ खुदावन को टाइम दे सके। और आज के लिए जो थॉट मेरे ज़हन में आया दैट वाज कि व्हाई वी शुड बी थैंकफुल फॉर आवर फेथ फॉर बीइंग क्रिश्चियंस। तो सबसे पहले तो आई टुक आउट फ्यू पॉइंट्स और सबसे पहले ये था कि दैट वी शुड बी प्राउड दैट वी आर चोजन वंस। जैसे कि पीटर भी कहता है वी आर द चोजन जनरेशन एंड अ रॉयल प्रीस्टहुड, मतलब हम शाही काहिनों का फिरका हैं। तो हमें इसके लिए खुदावंद का बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए और हमें इस बात पे प्राउड फील करना चाहिए। सेकेंडली, हमें इस बात का प्राउड फील करना चाहिए दैट वी फाइंड स्ट्रेंथ इन आवर रिलेशनशिप विद गॉड। और फिलिपियों भी कहते हैं कि आई कैन डू ऑल द थिंग्स थ्रू हिम हु स्ट्रेंथन्स मी, मतलब हम किसी भी मुश्किल में हो, किसी प्रॉब्लम में हो, we should always remember that God is with us and he takes care of us. And lastly, we should be thankful for the power of grace that God gives us. मतलब हम जिस चीज के लायक हैं, मतलब गुनाह के बाइस हम पनिशमेंट के लायक हैं, बट गॉड फॉरगिव्स अस एंड गिव्स अस द वे टू रीच गॉड। तो हम ये मैं छोटी सी थॉट थी और ये मैं इसको सम अप इस तरह करता हूँ दैट ही चोज अस फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम हमारे पैदा होने से पहले। ही स्टेज विद अस, ही स्ट्रेंथन्स अस, मतलब पूरी लाइफ टाइम में, एंड एट लास्ट ही गिव्स अस फजल दैट वी कैन रीच गॉड एट द एंड। दैट्स माय थॉट एंड वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट एंड नेवर फील inferior to others. Thank you. Thank you. God bless you. Yes, we should be grateful for being the follower of Jesus Christ. Then I invite Sister Zoya Nazir to share her thoughts. Good evening, everyone. मैं फिर से अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। My name is Zoya Nazir और I'm the proud member of the Voice of Shepherd. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं खुदा की बेहद शुक्रगुजार हूँ इस प्लेटफॉर्म के लिए जो खुदा ने प्रोवाइड किया है ताकि हम सारी यूथ एक साथ इकट्ठी हो सके और अपने थॉट्स को शेयर कर सकें और अपने ईमान को पुख्ता करते चले जाए। सो द थॉट फॉर मी इज, आज का जो थॉट है जो मैंने अपने लिए चुना और आप सबके लिए चुना वो ये है, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5, द एटीट्यूड यू शुड हैव इज द वन द क्राइस्ट जीसस हैड, यानी वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह खुदावंद का था। अब ये आयत इंतहाई सादे अल्फाज में हमसे कन्वे करती है कि आपने एक ऐसी लाइफ अपनानी है, एक ऐसे आपके एक्शंस ऐसे होने चाहिए, आपके काम ऐसे होने चाहिए जिससे आप खुदा के फजल को लोगों पे एक्सप्रेस कर सकें। स्पेसिफिकली हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे वी आर द मिनॉरिटी और हमें अपना लाइफ, हमें अपनी जो जिंदगी है वो इस तरह से ढालनी है कि लोग उससे एग्जाम्पल ले सकें। अब खुदा का मिजाज कैसा था
अब मसीह यस्सु का मिजाज हलीम थे, वो मुआफ करने वाले थे, वो लोगों को खाना खिलाते थे और उन्हें गरूर नहीं था। स्पेशली हमारी जो आज की जनरेशन है, हमारी जनरेशन में ग्लोबल एज है, हमारी इंटरनेट का ज़माना है, तो हमारे ज़माने में हेट फैलाना इज़ वेरी इजी। हम इंटरनेट पे जाते हैं, हम वीडियो बनाते हैं, हम वीडियो में किसी को क्रिटिसाइज करेंगे या फिर कमेंट्स में जाके किसी को क्रिटिसाइज करेंगे। एंड आई थिंक दैट्स रियली नॉट अ गुड थिंग। एज मसीही होते हुए, एक अच्छे मसीही होते हुए, हमें वो चीज़ नहीं अपनानी है। हमें बल्कि लोगों के साथ हम्बल रहना है, लोगों के साथ काइंड रहना है, लोगों के साथ एक अच्छा एक बॉन्ड बनाना है, जो मसीह यीशु ने हर किसी के साथ बनाया। तो यही था थॉट आज का मेरा, कि हमने एक ऐसी ज़िंदगी अपनानी है जो लोग उससे एग्जाम्पल ले सकें, जिससे लोग मुस्तफ़ीद हो सकें, जिससे लोग अपने आप को कि हमने अपनी ज़िंदगियों को इस तरह से ढालना है कि उससे हम एक अच्छी एग्जाम्पल बना सकें, एक ट्रू क्रिश्चियन होने का एग्जाम्पल सबको दे सकें। मसीह की पर्सनालिटी इस तरह की थी कि वो हलीम थे, वो लोगों को माफ़ करने वाले थे, वो लोगों को खाना खिलाते थे और उनमें गुरूर नहीं था। हमारी जो ग्लोबल एज है, दैट इज़ एक ऐसी एज है जिसमें क्रिटिसाइज करना, किसी को हेट फैलाना इज़ वेरी ईजी। लेकिन हमने एक ऐसी ज़िंदगी अपनानी है कि हम लोगों के साथ हम्बल रहें, लोगों के साथ काइंड रहें। हमें देख के लोग कहें कि एक सच्चा मसीही है। तो हमने एक ऐसी ही ज़िंदगी अपने आप को, अपने एक्शंस को इसी तरह रखना है कि उससे मसीह भी खुश हो सके, हमारे इर्द-गिर्द के लोग भी खुश हो सकें और हम बज़ाते खुद भी खुश हो सकें। तो द थॉट फॉर टुडे मेरा यही था कि हम अपनी ज़िंदगी को आज ऐसा ही अपनाएँ कि सो दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। यही मेरा कंक्लूजन था, यही आज का थॉट था कि हम अपनी ज़िंदगी को खुदा के मुताबिक ही चलाएँ। सो थैंक यू सो मच। Thank you, Sister Zoya. Next, Himan Ashur will share his thoughts. हाँ जी, मसीह में आप सबको सलाम। मैं शुक्र करता हूँ इस मौका के लिए मुझे दिया गया कि मैं आप सबके साथ कुछ शेयर कर सकूं। और जो मैं करना चाहता हूँ अभी सिस्टर ने जो शेयर किया उससे काफ़ी सिमिलर है, और ये है कि मसीह होने का मतलब क्या है और उसका ट्रू मीनिंग क्या है। लाइक व्हाट्स द ट्रू मीनिंग ऑफ बीइंग अ क्रिश्चियन। सो काफ़ी लोग सोचते होंगे कि चर्च चले गए, दुआ कर ली, ये कर लिया इधर उधर, चलो क्रिश्चियन हो गए हम। लेकिन बाइबल हमें कंप्लीटली अलग चीज़ सिखाती है, क्रिश्चियन की डेफिनेशन क्या है और क्या पर्सपेक्टिव है क्रिश्चियन होना। और क्रिश्चियन वो होता है जो मसीह को अपने दिल में और अपने बिहेवियर के थ्रू रिफ्लेक्ट करता है और दिखाता है कि हाँ जी मैं मसीही हूँ। जैसे फिलिपियंस 2 में सिस्टर ने पढ़ा, पहले भी फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5 में लिखा है, वैसे हम सारे को जैसे मसीह यीशु का था, वैसे ही आप अपने थ्रू आप मसीह को अपने इतना अपना लें अपनी ज़िंदगी के, आप जो भी आप करें मसीह को आप दिखाएं, लोगों को पता चले हाँ जी ये मसीही है, लोगों को पता चले कि हाँ ये फॉलोअर है क्राइस्ट का। एक और है कि हम मसीह को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करें और उसको निजात दहिंदा अपना माने। ये भी क्रिश्चियन का एक मायने है कि आप क्रिश्चियन है तो आपने मसीह को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करना और मानना है कि हाँ वो मेरे लिए मरा, मेरे गुनाहों के लिए मरा, 3 दिन मुर्दों में से जी उठा और वापस आने को है जज करने। आपने ये भी अपने ज़हन में रखना है कि वो आपने हर चीज़ अपने फेथ आपने उसमें रखना है, जहाँ भी जाते हैं जो भी काम करते हैं हर चीज़ अपना ईमान आपने मसीह यीशु में रखना, जो मर्जी हो जाए, और आपका ईमान कभी मरना नहीं चाहिए मसीह यीशु में। और ये भी कि जैसे यूहन्ना का 3 बाब 16 आयत में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी थी, उसने अपना बेटा दे दिया कि जो किस पे ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो मसीह के थ्रू, सिर्फ मसीह के ही थ्रू हमें हमेशा की ज़िंदगी गारंटीड है, सिर्फ मसीह के थ्रू। ओके। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ना सिर्फ मसीह के जो हुक्म उसने हमें दिए हैं उसको ना तो हम सिर्फ सुने या पढ़ें, बल्कि उस पर अमल करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखेंगे आजकल के लोग चर्च जाते हैं, ओके बाइबल तो पढ़ के आ गए, कलाम सुन के आ गए, चर्च से बाहर निकले वही फिर से काम शुरू कर दिए। चर्च में जाके तो पढ़ा हुआ होता है कि हाँ जी ये वो, लेकिन वापस जिंदगी वापस टर्न बैक हो जाती है। हमें ये भी जरूरी है कि हम जिंदगी में हम अपनी लाइफ में रिपेंट करें, अपने गुनाहों की हम माफ़ी मांगे यीशु मसीह से, और सिर्फ यीशु मसीह की एक कुर्बानी की वजह से, मरने की वजह से हमारे गुनाहों की माफ़ी मिली है। जैसे कि रोमियो उसका मैं पढ़ता हूँ आप सबके सामने, रोमियो उसका 6वां बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है, पढ़ता हूँ मैं। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदा मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है।
अगर आप गुनाह करेंगे तो उसकी मजदूरी क्या है? यहाँ पे साफ साफ लिखा है मौत है। तो हमें उस मौत से बचने के लिए यीशु मसीह को कबूल करना है, जैसे यहाँ पे लिखा है यीशु में हमेशा की जिंदगी है। हमने यीशु को कबूल करना है हमेशा की जिंदगी पाने के लिए और गुनाहों से फ्री होने के लिए। और हमारी जॉब एक और है कि हम क्रिश्चियन होते हुए हमारा ये जॉब है कि हम ये गॉस्पेल को हम स्प्रेड करें, जैसे यीशु मसीह ने बोला मत्ती उसका 28 चैप्टर पढ़ता हूँ सबके सामने में। मत्ती 28 चैप्टर उसका 19वीं से 20 आयत तक यहाँ पे लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जाके आप मेरे कलाम को शेयर करो लोगों के दरमियान और मुनादी करो, ठीक है। और फिर बाद में जब आप क्रिश्चियन होते हैं हमें एक और चीज़ बड़ी मिलती है एज अ गिफ्ट, वो क्या है? होली स्पिरिट। होली स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ क्रिश्चियन होना, क्योंकि होली स्पिरिट हमें नॉलेज देता है खुदा के कलाम के बारे में और हमें कन्विक्ट करता है सिन से और हमें यीशु मसीह के पास और लेके जाता है। जब जब एक बिलीवर यीशु मसीह के पास आता है और कबूल करता है मसीह को, तो होली स्पिरिट हमें कन्विक्ट करता है गुनाह से और हमें हमें नॉलेज देता है खुदा के कलाम के बारे में कि हम लोगों को सिखा सकें, खुद भी सीख सकें और इसके बारे में और भी हम डाइव डेप्थ करें इस कलाम के अंदर कि हमें जो चीज़ें पहले नहीं आती थी वो होली स्पिरिट के थ्रू हमें और आ सकती हैं। तो यही मेरी थॉट थी थोड़ी सी कि क्या क्रिश्चियन होने का मतलब क्या है। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट मैं चाहूंगी ईमान बाबर से कि वो दुआ में हमें लीड करें। कदूस नशमुई खुदा आसमान और ज़मीन के खालिक वाली बाप यशम से अब जो जिंदा आसमानी जलाली खुदा उन बाप जी अब जो कह करने में थी में शफ्त फहमी करनी है बाप जी, जो कुछ आज हमने सीखा वो हमारी जिंदगी के लिए हो। और जैसे कि अब हम मैसेज सुनने जा रहे हैं उसके लिए मैं दुआ करती हूँ कि वो भी हमारी जिंदगी के लिए हो। हम सबको अपने हाथों में रखना, हम सबके गुनाहों को माफ करना और हम इसी रास्ते पर चलाना, सब कुछ आपकी जिंदा और चलाने वाला। कि वो खुदा उनका कलाम आमीन। अब मैं दावत दूंगी पास्टर आशिफ बशीर को कि वो खुदा का कलाम हमारे साथ शेयर करें। Hallelujah. Hallelujah. That is amazing. That is amazing what you have here done, everyone. So God bless you, everyone. मेरी आप सब से जो है दरख्वास्त है कि हम सब एक दूसरे के लिए जोरदार तालियां हम सब जो है बजाएंगे। ये जो है जितनी भी जो है तालियां जो है ये मेरी तरफ से आप सबके लिए हैं। जो काम आज आपने जो है वो किया है, ये काम इतना आसान काम जो है वो नहीं है कि हम खुदा के जो है वो कलाम को, खुदा के जो है कलाम की जो है ये बातों को एक दूसरे के साथ जो है हम जो है बयान जो है वो कर सकें। दैट इज टू मच अमेजिंग एंड आई एम टू मच ब्लेस्ड। मैंने आप सब की जो है बातों को हम सब ने सुना है। अगर आप में से जो है कोई और अगर जिस तरह जो है हमारे साथ आप सबके जो है पेरेंट्स भी होंगे, आप सबको मैं जो है मुबारकबाद में देना जो है वो चाहता हूँ कि खुदा हमारे जो है ये बच्चों को, सबके जो है बच्चों को खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना जो है चाहता है। दैट इज हाउ द होली स्पिरिट इज कन्विक्टिंग अस। पाक रूह जब हमें जो है कन्विक्ट करता है तो पाक रूह लोगों के जो है बच्चों के, हम सबके जो है दिलों से जो है कलाम करता है। और ये उसकी बहुत एक खूबसूरत एक जो पिक्चर है जो आज आप सब ने जो है देखा और आप सब ने जो है सुना है। इसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद जो है वो जो है देना चाहता हूँ। आइए खुदा उनके पाक कलाम को हम जो है वो सुनेंगे। ओवरऑल जो है वो जोया ने और जो है शारून ने जो है उन हवालों को जो है टच जो है किया है। हिमान ने भी, जो मैं बातें आपके साथ जो है शेयर करने के लिए जो है जा रहा हूँ खुदा उनके पाक इस कलाम में से। अशबा ने भी उस जो है कलाम के उस हिस्से को जो है ओवरऑल जो बात हम आज करने जा रहे हैं कि जो है किस तरह होली स्पिरिट हम सबको एक ही बात के लिए जो है वो मुत्तफिक जो है करता है। वी हैव नॉट हेल्प्ड ईच अदर। हमने जो है किसी को कोई ऐसी हेल्प नहीं की कि वो एक ही बात के ऊपर जो है एक ही बात को जो है वो जो है सबके साथ जो है करें। एंड यू ऑल सो जस्ट कम अप विद दिस योर वर्ड्स। और यही जो है खुदा का पाक कलाम आज जो है मेरे पास भी है। खुदा ने मेरे दिल में भी जो है डाला है कि मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूं। और आज का ये मैसेज इस यूथ के साथ
मेरा जो है फर्स्ट मैसेज है, और ये जो मैसेज है इट्स वेरी स्पेशल फॉर अस, फॉर माई लाइफ एंड योर लाइफ एज वेल। और हम देखेंगे खुदा उनके पाक इस कलाम में से, कलाम मुकद्दस के अंदर जो है लिखा है, इमसाल की किताब, उसकी जो है 7वीं और 10वीं आयत, वहां पर लिखा है, खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। ऐ मेरे बेटे, अपनी बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर, क्योंकि वो तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा और तेरे गले के लिए तौक होंगी। आमीन। यहां पर खुदा का जो पाक ये कलाम है, जो रूहुल कुदस की जो है कुदरत से लिखा गया है, ये आज मुझसे और आपसे बात कर रहा है। खुदावंद का ये कलाम है, ये मुझसे और आपसे आज बात कर रहा है, तमाम उन जो सुनने वालों के साथ, जो अभी सुन रहे हैं या इस बात को बाद में जो है सुनने वाले हैं, कि खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। अगर आज आप अपनी जो है वो जिंदगियां खुदा के खौफ के अंदर जो है आप जो है गुजार रहे हैं, अगर आपके अंदर खुदा का खौफ है, तो बेसिकली खौफ क्या चीज है? अगर हम खौफ की ट्रांसलेशन करें, अगर हम खौफ को समझें, तो खौफ जो है मोहब्बत को बयान करता है। खौफ किसको लेके आता है? मोहब्बत को लेके आता है। और जब हम किसी से मोहब्बत रखते हैं, तो हम उसके खौफ में रहते हैं कि कहीं वो मुझसे जो है नाराज ना हो जाए। ये खुदा की मोहब्बत है। खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है, और जब हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, तो खुदा हमें अपने इल्म से भर देता है। खुदा अपना इल्म हमारी जिंदगियों के अंदर ट्रांसफर करता है। खुदा हमें अपने रूह से मामूर करता है। और खुदा का इल्म क्या है? खुदा का पाक रूह। खुदा का जो है पाक रूह है, खुदा का इल्म है, खुदा का जो है कंप्लीट इल्म है। अगर आप कलाम मुकद्दस को जब पढ़े, तो कलाम मुकद्दस के मुताबिक ये दुनिया, ये कायनात जो है वो रूहुल कुदस की कुदरत से जो है वजूद में आई। बनाने वाला खुदा है। खुदा ने कहा और हो गया। पाक रूह ने काम किया। पाक रूह हमें लीड करता है। और खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। जब हम अपने आप को खुदा के खौफ में ले आते हैं, खौफ का, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि खौफ का मतलब डर नहीं है, खौफ का मतलब है मोहब्बत। जब हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, जब हमारे जो है वो दिलों में उसके लिए मोहब्बत होती है। आप सब जो है, हम सब अपने माँ बाप से मोहब्बत रखते हैं, और इसी मोहब्बत के अंदर रहते हुए हमें उनका डर भी होता है कि नहीं, मेरे जो डैडी या मदर मुझसे जो है नाराज हो जाएंगे। अगर मैं कोई ऐसा काम करूंगा या करूंगी, तो वो मुझसे जो है नाराज हो जाएंगे। ये क्या है? ये रिलेशनशिप है। ये जो है मोहब्बत का रिश्ता है। और जब हमारा रिलेशन खुदा के साथ होता है, तो हम खुदा के खौफ में जिंदगी जो है गुजारते हैं। और जब खुदा के खौफ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ओबीडियंस, खुदा की जो है ताबेदारी। जिस तरह के हम अपने वालिदैन की जो है ताबेदारी जो है करते हैं, जैसा कि अगली आयत के अंदर जो है लिखा है, 8वीं आयत के अंदर, ऐ मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर वो कान और लगा और अपनी माँ की तालीम को वो तर्क ना कर। खुदा का ये जो है कलाम मुकम्मल जो है कलाम है। दुनिया के हर एक इल्म से ज्यादा, हर एक जो है दुनिया का जो भी इल्म आप हासिल कर लें, उससे ज्यादा वैल्यू रखता है ये इल्म जो आज हम देख रहे हैं, जो खुदा के खौफ के वसीला से आता है। और वो हमें ये कहता है, ऐ मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर वो कान लगा और अपनी माँ की तालीम को वो तर्क ना कर। हमें खुदा का ये पाक कलाम ओबीडियंस करना जो है, जो यहाँ पर जो है सिखा रहा है, अपने बाप की और अपनी जो है माँ की। खुदा का ये कलाम हमें जो सिखाता है कि हमें जो किस तरह अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करनी है, हमें अपने वालिदैन की इज्जत करनी है, हमें जो है वो किस तरह उनका कहना जो है मानना है।
इस जमीन पर रहते हुए, अपने जो है वो घरों के अंदर, जब तक आपके वालिदैन आपके साथ हैं, जो है खुदावंद ने उनको आपके साथ जो है रखा है, हमें उनका कहना मानना है, हमें अपने माँ बाप के जो है कंट्रोल में रहने की जो है जरूरत है। खुदावंद का ये कलाम हमें आज यही बात जो है सिखा रहा है। खुदा का ये कलाम हमसे आज ये बात कर रहा है डायरेक्टली, आप सब से आज ये बात कर रहा है कि हमें अपने वालिदैन के अंडर कंट्रोल रहने की जरूरत है। और ये खुदा के खौफ के वसीला से है, ये खुदा के जो है कलाम का हुक्म है। खुदा हमसे जो है इस बात की को जो है एक्सपेक्ट करता है कि हम अपने वालिदैन की इज्जत करें। अगर आप सब जो है यीशु मसीह के बारे में जो है जानते हैं, हमारे यीशु अल मसीह जो मुकद्दसा मरियम से जो है पैदा हुए, उन्होंने अपनी जिंदगी फुल ओबीडियंस में जो है गुजारी, अपने माँ बाप की उन्होंने खिदमत की। जो है जब तक वो जो है खिदमत में ना गए, जब तक जो है वो खिदमत में जो है उन्होंने जो स्टेप इन नहीं किया, उस वक्त तक वो अपने माँ बाप की खिदमत करते रहे और उनके जो है कंट्रोल में थे, और उनको जो है कमा कर ला के जो है उनको उन्होंने जो है दिया। और वो जो है लकड़हारे का जो काम करते थे, वो जो थे वो कारपेंटर थे, और उन्होंने अपने जो है अपनी जो है जमीनी जो है जिंदगी के अंदर, उनके जिंदगी के अंदर कोई भी ऐसी बात जो नहीं थी जो आजकल के दौर के अंदर हम अपने अंदर देखते हैं। डिसोबीडियंस खुदा को इंतहाई नापसंद है, और ये उस वक्त होता है जब हमारे अंदर मोहब्बत खत्म हो जाती है। क्योंकि यूहन्ना की इंजील उसके जो 14वें बाब के अंदर जो लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जो है शागिर्दों से ये कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अजीजों, जब हम मोहब्बत रखते हैं, जब हमें जब जो है हम जो है अपने वालिदैन से मोहब्बत रखते हैं, अपने जो है भाई से बहन से मोहब्बत रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम उनके खौफ में रहते हैं, हमें उनसे मोहब्बत है, हम उनका कहना मानते हैं, हम उनकी डायरेक्शन के मुताबिक जो है हम जो चल रहे होते हैं। और खुदावंद का ये कलाम आज हमें यही बात जो है वो सिखाता है कि हमें खुदा के खौफ में किस तरह जो है जिंदगी गुजारने की जरूरत है। और जैसा कि हमने कलाम मुकद्दस में जो है पढ़ा, एंजल आरिफ ने जो है उसकी जो है रीडिंग की, इमसाल की किताब उसका जो पहला बाब उसकी जो 15 और जो 16वीं आयत, वहां पर इस तरह जो है लिखा है, ऐ मेरे बेटे तू उनके हमरा ना जाना, उनकी राह से अपना पाँव और वो रोकना, क्योंकि उनके पाँव बदी की तरफ वो दौड़ते हैं और खून बहाने के लिए जल्दी वो करते हैं। खुदावंद का ये कलाम हमें जो है ये बेटों की मानिद, एक बाप की मानिद हमें जो है वो तंबीह करता है। खुदा का ये कलाम ऐसे जो है बाप हमें जो है तंबीह करता है, हमसे जो है कलाम करता है, जो है एक बाप की मानिद वो जिस तरह अपने जो है बेटों से बात करता है कि तू उनके हमरा ना जाना। वो किन के हमरा? जैसा कि जो है जबूर उसका जो है पहला बाब वहां पर जो है लिखा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आजकल के इस दौर के अंदर नौजवानों के लिए इस बात को जानना और समझना बहुत ज्यादा जो है जरूरी है। आपके स्कूल के अंदर, आपके जो है कॉलेज के अंदर, आपके जो है मोहल्ले के अंदर, आपके जो है दोस्तों के जो है सर्कल के अंदर आपको ऐसे बहुत से लोग जो है मिलेंगे, आपके ऐसे बहुत सारे जो है फ्रेंड्स आपको जो है मिलेंगे, जो आपको जो है वो किसी ऐसी राह पर जो है वो ले जाना जो है आपको जो है चाहते हैं जो खुदा के जो है खिलाफ है। यहां पर इस तरह लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं वो चलता और खताकारों की राह में वो खड़ा वो नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। हमारे दोस्त कैसे होने चाहिए, हम किन जो है लोगों की जो है महफिल में हम जो है बैठते हैं, हमारा जो है ताल्लुक जो है कैसे जो है वो लोगों के साथ है, हमारे स्कूल के जो है फ्रेंड्स जो है वो कैसे हैं, क्या वो जो है वो ठट्ठा करने वाले हैं, क्या वो एक दूसरे के जो है दिलों के अंदर जो है रंजिश पैदा जो है करते हैं, क्या वो हर वक्त उनके जो है दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए जो है जेलसी रहती है। हमें इन बातों को ऑब्जर्व करना है
ऐसे जो है ट्रू जो है वो हमें जो है अपने हम जो ऐसे जो है ट्रू जो है मसीह होते हुए हमें इन बातों का ख्याल रखना है कि हम जो है किस तरह अपनी जो है वो जिंदगियों को जो है बसर करें, हम जो है किस तरह अपनी जो है जिंदगियों को जो है वो गुजारें। हमें जो है नजर रखने की जरूरत है, हमें ऑब्जर्व करने की जो है जरूरत है लोगों को, कि आपका जो है ताल्लुक जो है किन लोगों से है, आपके जो है दोस्त जो है वो कौन से हैं। कहीं वो ठट्ठा करने वाले तो जो है नहीं है, कहीं वो ऐसे तो नहीं जो आपको जो है बुरी राह पर जो है लेकर जो है वो जा रहे हैं। अजीजो, खुदा का ये कलाम हमसे बात करता है और हमें इस बात की जो तलकीन करता है कि हम जो है खुदा के जो है कलाम पर अमल करें। और सबसे जो है खूबसूरत फार्मूला जो है बाइबल मुकद्दस के अंदर है। बाइबल मुकद्दस हमारे लिए मुकम्मल जो है एक जो है तालीम है, जिसके वसीला से हम इस दुनिया के अंदर महफूज रह सकते हैं और आखिरत में आसमान की बादशाही में हम जो है दाखिल हो सकते हैं। हम जो है ट्रू जो है बिलीवर जो है बन सकते हैं और उसके लिए हमें स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। हमें आपको आज आपके लिए मैं एक बात जो है छोड़े जो है वो जाता हूं। इससे पहले कि मैं आज की जो है इस कलाम को जो है हम जो है इसको जो है क्लोज करें, जबूर 118 सॉरी 119 उसकी 9वीं आयत के अंदर जो है लिखा है, ये आप सबके लिए है। जवान अपनी वो रविश किस तरह पाक वो रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह वो रखने से हम किस तरह इस दुनिया से जो है वो बच सकते हैं, इस दुनिया से महफूज रह सकते हैं। हम अपना दामन किस तरह पाक रख सकते हैं, हम अपने आप को जो किस तरह जो है डिसओबीडियंस से जो है बचा सकते हैं। आप जो है किस तरह इस मुआशरे के अंदर जो है रहते हुए खुदावंद की बरकत को पा सकते हैं। आप जो है किस तरह जो है हर तरह की जो है बुराई से महफूज रह सकते हैं। आप अपनी आंखों को जो है किस तरह जो है बुराई को देखने से जो है आप अपनी आंखों को जो है महफूज रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के जो है कलाम पर ध्यान करने से। जवान अपनी जो है रविश जो है किस तरह पाक जो है रखेगा, ओनली और ओनली खुदावंद के जो है कलाम पर जो है वो जो है उसका जो है ध्यान अगर जो है खुदा के जो है कलाम पर जो है होगा तो वो हर तरह की जो है बुराई से जो है बच सकता है। अगर आप अपने जो है वो आपका जो है ध्यान जो खुदा के जो है कलाम पर है तो आप जो है अपने जो है घरों के अंदर बाइबल मुकद्दस को जो है पढ़ेंगे, आप जो है दुआ करेंगे और ये जो है हमारा जो है खुदा के साथ जो है एक रिलेशन है और हमें इस रिलेशन को बरकरार रखना है, हमें इसके अंदर जो है बढ़ना है। हमें हर रोज जो है बाइबल मुकद्दस को जो है पढ़ने की जरूरत है आप सबको, और हमें इस दुनिया के अंदर जो है नूर के जो है फर्जंद बनकर जो है रहना है, ताकि कोई हमारी जवानी की हकारत ना जो है कर सके, कोई हमारे अंदर जो है फॉल्ट ना जो है वो ढूंढ सके। क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर लोगों ने बहुत से इल्जाम लगाए लेकिन कोई उस इल्जाम को साबित ना जो है कर सका, क्योंकि उनकी जमीनी जिंदगी रास्तबाजी की जिंदगी थी। और कलाम मुकद्दस हमें इस बात के लिए इनकरेज करता है कि हम भी यीशु मसीह की मानिद हों। और आज बच्चों, आज आप सबको भी यीशु मसीह की मानिद बनने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आप आसमान की बादशाही में जाएं, आप चाहते हैं कि खुदा आपसे बात करे, खुदा आपको इनकाउंटर करे, खुदा के साथ आपका जो है डायरेक्ट फेस टू फेस आपके साथ खुदा की बात हो, तो उसके लिए हमें दुआ करने की जरूरत है। आपको जो है दुआ करने की जरूरत है, खुदा के साथ अपना रिलेशन बनाने की जरूरत है और खुदावंद आपके साथ इस कलाम के वसीला से बात करता है। और हमें अपनी जिंदगियों के अंदर, अपने घरानों के अंदर इस बात की हमें जो प्रैक्टिस करनी है। हमें एक दूसरे के साथ जो है जुड़े रहना है, हमें एक दूसरे के साथ जो है इकट्ठे होने से बाज जो है नहीं आना। हमें एक दूसरे के साथ, मसीही लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ नहीं जो कि जो है वो ठट्ठाबाज हैं, जो हर वक्त जिनका ध्यान जो है वो शरारत पर जो है रहता है, जो लोग जो है गालियां निकालते हैं और तरह तरह के गलत काम जो है वो करते हैं। हमें उन सब से जो है गुरेज करने की जरूरत है। हमें अपने माँ बाप की ताबेदारी के अंदर अपनी जिंदगियां जो है गुजारने की जो है जरूरत है। और जो है खुदावंद यीशु अल मसीह आप सबको आज के इस कलाम के वसीला से बड़ी जो है बरकत दे और अपने जो है जलाल के लिए जो है कसरत से इस्तेमाल करे। आइए अपने सरों को हम जो है झुकाएं। मैं आप सबके लिए दुआ करना जो है चाहता हूं कि आज का ये कलाम, आज की ये बात जो खुदा की
जो है पाक जो है कलाम से है, खुदा के जो है रूह के वसीला से है, आपकी जिंदगियों के अंदर 100 गुना जो है फल पैदा करे। आसमानी बाप यीशु अल मसीह के नाम में हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद के खुदा इस यूथ को तेरी हजूरी में खुदावंद मैं पेश करता हूँ। खुदावंद इन बच्चों को तू अपने जलाल के लिए तू कसरत से इस्तेमाल कर। खुदावंद इनको ये फजल बख्श दे कि तेरे खौफ के अंदर अपनी जिंदगियां जो है गुजारना शुरू करें और रोज बरोज जो है तू जो है खुदावंद खुदा वो तुझ में जो है बढ़ते ही जो है वो चले जाएं। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ इनकी तमाम तर खुदावंद को थॉट्स के लिए। खुदावंद आज के खुदावंद खुदा ये पूरे इस खुदावंद को जो है खुदा इस जो है स्केड्यूल के लिए मैं तेरा खुदावंद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावंद के खुदा तू इन खुदावंद को तमाम तर इन जो है बच्चों को तू अपने जलाल के लिए तू कसरत से इस्तेमाल कर, इनको अपनी प्रस्तिश के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद इनको अपनी आवाज जो है बनाकर जमीन की इंतहा तक इस्तेमाल कर। ये जहां भी हो, स्कूल्स में खुदावंद खुदा कॉलेजेस के अंदर अपनी जो जॉब्स पर हो, तो खुदावंद खुदा इनकी खुदावंद खुदा चाल और ढाल तेरे कलाम के मुताबिक हो। तो खुदावंद इनको अपने खुदावंद खुदा इनको अपने जो है कलाम में जो है वो ढाल ले खुदावंद खुदा, और इनको जमीन की इंतहा तक अपने जलाल के लिए तो इस्तेमाल कर। खुदावंद मैं तेरा जो है फजल, तेरी बरकत, तेरी खुदावंद खुदा खुदा मैं पाकीज़गी मांगता हूँ इन घरानों पर, खानदानों पर, इनके वालदैन पर। खुदावंद मैं तेरी बरकत को मांगता हूँ कि जिन सब ने आज ये वक्त निकाला है और जो है इन सब को जो है आज की इबादत में जो है लेकर आए हैं, खुदावंद तू इन सब को अपने जलाल के लिए तू कसरत से इस्तेमाल कर। इन खानदानों को बड़ी बरकत दे, इस यूथ को बड़ी जो है बरकत दे, ताकि जो है वो जैसे जैसे खुदावंद खुदा ये खून और गोश में जो है तरक्की जो है करते हैं, उसी तरह ये तेरे जलाल में, तेरी समझ में, तेरे फहम में जो है बढ़ते ही जो है चले जाएं। और खुदावंद तू इनके साथ हो, खुदा पाक करूं तो इनको जो है गाइड कर। यीशु अल मसीह के नाम में हम सब जो है मांगते हैं और अपने ईमान के वसीला से पा लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे वो कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा वो तेरे ही हैं, आमीन। कलमाते अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलम की कलीसाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में मांगते हैं और यीशु अल मसीह के वसीला से पा लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। We will see you next week again.